Now connected to the show. Am I audible? Can I go ahead? Yes, you are audible, sir. All right, so I'm going ahead now. We are going to discuss unit number three, and unit number three is about anti-malarial agents. It is about anti-malarial agents. Unit number three is about anti-tubercular, anti-leprosy agents, antifungal agents, antiviral agents, anti-cancer agents. And if I talk about anti-malarial agents, human malaria is caused by four species of Plasmodium. So basically, the parasite is Plasmodium, and this Plasmodium parasite is having four species. What are they? Number one is Falciparum vivax, Falciparum vivax, and so we have Falciparum vivax, malariae, and ovale. These are four. These are four species of Plasmodium, which is responsible for causing malaria. If I talk about, if suppose I have 100 cases of malaria and 70% of them are caused by Vivex. 70% of them are caused by Vivex. Now, in falciparum and vivax infection, patient have fever with rigorous every third day and terms at tertian. In other two, P. ovale and malaria, fever develops every fourth day and named as quartan. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट ड्रग्स की. सबसे पहली ड्रग इंपॉर्टेंट जो है वो है क्लोरोक्वीन. क्लोरोक्वीन जो है, इट इज अ 4 aminoquinol एंटी मलेरियल एजेंट यूज फॉर सप्रेशन एंड क्लिनिकल क्योर ऑफ मलेरिया. It is an excellent erythrocytic. It is an excellent erythrocytic Shigiontocide. सीजियोन्स होते हैं जो मलेरिया के अंदर, आरबीसी के अंदर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया. इट डज नॉट प्रिवेंट रिलैप्स. इसकी बहुत अच्छी बात यह रिलैप्स नहीं करता. And it is a drug of choice for clinical cure and suppressive prophylaxis of acute malaria, but not for resistant cases of P. falciparum. P. falciparum के लिए क्लोरोक्विन काम नहीं करता. इसे हम प्रेगनेंसी में भी सेफली दे सकते हैं. अब इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं मलेरिया के अलावा क्लोरोक्विन के. हम इसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दे सकते हो, जार्डियासिस में दे सकते हो, डीएलई में दे सकते हो. फिर हमारे पास है प्राइमाक्विन. दिस इज हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट गैमेटोसाइट. इट इज इफेक्टिव इन रेडिकल क्योर ऑफ पी वाइवेक्स एंड पी ओवेल. तो हमारे पास पहली की ड्रग थी क्लोरोक्विन, फिर प्राइमाक्विन. अब हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है मेफ्लोक्विन. मेफ्लोक्विन भी बहुत इफेक्टिव ड्रग है. देन हमारे पास है क्यूनिन. क्यूनिन हमें नेचुरल एल्कलॉइड से मिलता है, सिनकोना बार्क से ये ड्रग मिलती है. पेड़ होता है, उसका बार्क जो होती है, सिनकोना बार्क से हमें ये मिलता है. ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस, जैसे हम बोलते हैं दिमागी बुखार, सेरिब्रल फैल्सिपेरम मलेरिया के लिए काम आता है, या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के लिए काम आता है. उसके बाद हमारे पास है प्रोगुआनिल. इसे हम प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मलेरिया के लिए यूज करते हैं, प्रोगुआनिल को. फिर पायरेमिथामिन सल्फोनामाइड, इसे हम क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया के केस में देते हैं. पायरेमिथामिन सल्फोनामाइड का कॉम्बिनेशन. एंड फिर हमारे पास है आर्टेमिसिन डेरिवेटिव्स. ये भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पी फैल्सिपेरम के केस में दिया जाता है. So these drugs are used for the treatment of malaria. Now I am coming to tubercular drugs. In tuberculosis, ये एक infection है which is caused by Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis. WHO के हिसाब से 1/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन टीबी से इन्फेक्टेड है.
अब इसके कुछ फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं जैसे आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, pyrazinamide, ethambutol. These drugs are these drugs are first line drugs. ये ना हमारी first line drugs हैं. Isoniazid, it is the most active drug used in treatment of tuberculosis. It is hydrazide of isonicotinic acid. It inhibits the synthesis of mycolic acid. Mycolic acid का synthesis को inhibit करता है, which is an important component of mycobacterial cell wall. फिर हमारे पास है rifampicin. It is semi-synthetic derivative of rifamycin isolates. एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ड्रग है जो हम पेरेंट्रल रूट से दे सकते हैं, बाकी चारों ड्रग ओरल रूट से दी जाती है, सिर्फ ये हमें पेरेंट्रल रूट से देनी है. Then comes to first line, then comes to second line drugs, ethionamide, cycloserine, capreomycin. ये सारी ड्रग्स जो हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं. These are given when there is resistance to first line drugs, and it is known as multi-drug resistant tuberculosis. This is rifabutin. This is rifabutin. So all of these drugs are given in drug resistance tuberculosis, which is known as multi-drug resistant tuberculosis. And उसके बाद हमारे पास है एंटी लेप्रोसी एजेंट. लेप्रेसी के ट्रीटमेंट में हमें लेप्रेसी होता किससे है? इट इज़ अ बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे. इसकी बहुत सारी ड्रग्स हैं. डैप्सोन यूज किया जाता है, जिस केमिकली रिलेटेड टू सल्फोनामाइड्स have been used effectively in long term treatment of leprosy. It is also used, डैप्सोन को हम पायरिमिथामिन के साथ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया में भी यूज कर सकते हैं. फिर हमारे पास है रिफैम्पिसिन, हाईली इफेक्टिव ड्रग है ये. देन वी हैव क्लोफाजिमिन. अदर ड्रग्स, इथियोनामाइड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर लेप्रोसी. Other microbacterial agents like fluoroquinones, ofloxacin, pefloxacin, sparfloxacin can be used in alternate regime. So this is about leprosy and tuberculosis. Now I am coming to antifungal agent. एंटी फंगल एजेंट हम टॉपिकल यानी जो हम ऊपर से ड्रग लगाते हैं, कोई क्रीम, कोई ड्रॉप, ये भी हो सकता है. सिस्टमेटिक यानी ड्रग्स को, दवाई को खा के इफेक्ट जो आता है वो सिस्टमेटिक. सो इसके केस में एम्फोटेरिसिन बी, इट इज एन एंटी फंगल. ये एक एंटी फंगल एजेंट है एम्फोटेरिसिन बी, जो स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस से मिलता है. And amphotericin B, it has a wide spectrum of antifungal activity जैसे Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Candida albicans, Sporotritium shankai, Blastomycosis, Coccidio immitis. And all of these drugs, it is used orally for intestinal candidiasis, topically for oral, vaginal and cutaneous candidiasis. And उसके बाद हमारे पास है nystatin, nystatin. Then we have griseofulvin, Penicillium griseofulvin. It is active against epidermophyton, trichophyton, microsporum. Then we have flucytosine and clotrimazole, ketoconazole, terbinafine, these agents. And we have then miscellaneous agents, tolnafate. It is effective in tinea curis and tinea corporis.
This is used in form of solution and cream used topically, not useful in candidiasis and other types of superficial mycosis. Selenium sulfide is used as shampoo and used in treatment of scalp fungal infection. Most commonly जिसे हम डैंड्रफ जानते हैं, सेलेनियम सल्फाइड डैंड्रफ में भी सेलेनियम का शैम्पू हम पेशेंट को दे देते हैं. Then we have antiviral agents. Antiviral viruses have no cell wall and made up of nucleic acid core enclosed in protein coat, which consists of identical subunit. Viruses are of two types. डीएनए वायरस होता है और एक आरएनए वायरस होता है. डीएनए वायरस है जैसे हर्पीज सिम्प्लेक्स, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, वेरिसिला जोस्टर. And RNA viruses are rabies, measles, dengue, rubella, yellow fever, poliomyelitis, and HIV, etc. In viral infections, application of virus is at peak or before manifestation of clinical symptoms. Then we have idoxyuridine. It is chemically related to thymidine and acts by competing within the synthesis of DNA and preventing the utilization of thymidine. अगला ड्रग हमारे पास है ए साइक्लोवेर. ए साइक्लोवेर एक ड्रग है विच इज a synthetic purine nucleoside analog with in vitro and vivo inhibitory activity against human herpes virus. It is used in treatment of herpes simplex virus, prevention of recurrence of herpes simplex, prophylaxis of herpes simplex, varicella, chickenpox, and herpes zoster. Early treatment of shingles with acyclovir can reduce the incidence of post-herpetic neuralgia. Then we have zidovudine, we have lamivudine, we have nevirapine. Nevirapine is for prevention of transmission of HIV from mother to newborn. Lamivudine, HIV infection. Then we have efavirenz. It is used in combination with other retroviral drugs for treatment of HIV. Then we have Indiana, where it is indicated for treatment of HIV infection. Ritonavir is also for HIV-1 and HIV-2 protease inhibitor. Then amantadine is for prophylaxis of influenza A. Then we have ribavirin and some of the interferons. Basically, interferons are cellular glycoprotein produced by host cell and ये एक एंटीवायरल इम्यूनोरेगुलेटरी एंड एंटी प्रोलिफरेटरी एक्टिविटीज में काम आता है. एड्स रिलेटेड कपोसी सार्कोमा. No. Now coming to anti-cancer agent. In anti-cancer agent, we have alkylating agents. Alkylating agents react with nucleic acid and inhibit DNA synthesis and also interfere with cell replication. Alkylating agents had got cytotoxic action and damage of nuclei of growing and multiplying cells. They have got immunosuppressant actions also and suppress antibody production. They have also radiomimetic actions. Then we have cyclophosphamide and then we have cyclophosphamide, clomabucil, lomustine. Lomustine, this lomustine Hodgkin डिजीज में, ब्रेन ट्यूमर्स में, लंग कार्सिनोमा में दिया जाता है. देन सम एंटी मेटाबोलाइट्स जिसमें हमारे पास आता है मिथोट्रेक्सेट, मेट मेट मेटर का कैप्टोप्यूरिन, फ्लोरोयूरेसिल, सिटाकार्बिन. These are the anti-cancer drugs which are used in various cancers. उसके बाद है cytotoxic antibiotics. इसमें एक्टिनोमाइसिन डी आता है, डॉक्सोरिबोसिन आता है, ब्लियोमाइसिन आता है.
देन वी हैव विंका एल्कलॉइड जिसमें विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, यूजुअली ये सब ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमास में यूज होता है. देन वी हैव टेक्सान्स, पेक्लिटेक्सल and docetaxel. Then we have irinotecan and topotecan. कुछ हार्मोनल है जैसे फॉस्फेस्ट्रॉल, ये सिंथेटिक नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन है. इथिनाइल इस्ट्राडायोल भी यूज होता है एंड टेमोक्सीफेन. अब कुछ मिसलेनियस ड्रग्स हैं जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया is indicated in treatment of chronic granulocytic leukemia, polycythemia vera. Then we have procarbazine, L-asparginase and cisplatin. उसके बाद कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं हमारे पास जिसमें एजाथियोप्रिम एंड साइक्लोस्पोरिन. बेसिकली साइक्लोस्पोरिन हम देते हैं जब भी कोई हम ग्राफ्ट डालते हैं, या जिसको आप कह सकते हैं कि हमने कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, उस केस के अंदर हम जब ग्राफ्ट डालते हैं ना. So this is all the summary. Now coming to unit 14, that is endocrine system. If I talk about endocrine system, सबसे पहले हमारे पास है पिट्यूटरी के हार्मोन्स. हार्मोन्स वो सब्सटेंस हैं वो जो that are secreted by endocrine glands, and these are endocrine glands. क्या हैं ये? वो glands हैं that secrete their content directly into bloodstream or the extracellular fluid. These substances can either have an effect on adjoining cell, anterior pituitary hormones हैं growth hormone, thyroid stimulating hormone, adenocorticotrophic hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, or interstitial cell stimulating hormone, leptogenic hormone or prolactin. Growth hormone basically acidophilic cells से secrete होता है. Human growth hormone has a single straight chain polypeptide structure containing two intramolecular disulfide bridges and is composed of 188 amino acids. It stimulates growth directly in conjunction of other hormone. It increases the length of cartilage bone. After administration, there is an increased body growth due to direct effect on tissues. It stimulates growth of muscle and also increases the secretion of milk during lactation. Growth hormone promotes protein metabolism. It increases nucleic and protein synthesis, decreases nitrogen excretion in the urine. अब ग्रोथ हार्मोन जो है वो रेगुलेट, ग्रोथ हार्मोन कैसे सिक्रीट होना है, कब सिक्रीट होना है, इसे रेगुलेट किया जाता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर के द्वारा. हाइपोथैलेमस में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है जो उसको रेगुलेट करेगा. अगर ग्रोथ हार्मोन कम है बचपन में तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, एंड अगर ग्रोथ हार्मोन कम है एडल्ट लाइफ में तो ड्राई रिंकल्ड स्किन हो जाएगी. हाइपर सिक्रीशन अगर चाइल्डहुड में होगा तो जाइगैंटिज्म हो जाएगा, और अगर एडल्टहुड में होगा तो एक्रोमेगाली हो जाएगा. Nowadays, human growth hormone is produced by recombinant DNA technique. The preparation available are somatropin and somatrin. Somatostatin भी है एक, it is a peptide that inhibits release of growth hormone. Then हमारे पास है thyroid stimulating hormone. ये थायराइड के ऊपर काम करता है, थायराइड आयोडीन लेता है और थायराइड का हार्मोन बनाता है T3 या T4 हम जिसे बोलते हैं. T3 या T4 बनाना TSH के बाद शुरू होता है. Then we have ACTH. This is secreted by basophilic cells under control of CRF, corticotropin releasing factor. उसके बाद हमारे पास स्टेरॉइड्स में है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स
ये तीन हार्मोन हमें हमारे पास स्टेरॉइड्स की तरह होते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बॉडी में बनाना, नमक और पानी का एक बैलेंस बना के रखना। देन उसके बाद हमारे पास अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कम होते हैं तो वो होता है एडिसन्स डिजीज, ज़्यादा होते हैं उसको बोलते हैं कशिंग्स सिंड्रोम, जिसमें फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स जो हैं मेल्स के अंदर फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स आ जाते हैं। देन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन in females the target organ are the ovaries where it increases number and size of Graafian follicle and prepare them for ovulation. Then we have luteinizing hormone. Then we have prolactin. This prolactin का डायरेक्ट इफेक्ट होता है ब्रेस्ट के ऊपर immediately after delivery of birth and in conjugation with other hormones that stimulate breast to secrete milk. Then we have posterior lobe of pituitary gland. पिट्यूटरी का posterior lobe, इसमें ADH, vasopressin, oxytocin. Now coming to thyroid hormone and anti-thyroid agents. थायराइड हार्मोन में हमारे पास है T3, T4। द थर्ड हार्मोन कैल्सिटोनिन भी होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स से ये सिक्रीट होता है। एंड उसके बाद हमारे पास है एंटी थायराइड एजेंट्स। तो थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो एंटी थायराइड एजेंट्स होते हैं ड्रग्स which inhibit hormone synthesis, drugs which inhibit iodide trapping, drugs which inhibit hormone release, drugs which destroy thyroid gland tissue. So, drugs which inhibit hormone synthesis, drugs which inhibit iodide trapping, drugs which inhibit hormone release, and drugs which destroy thyroid gland tissue. I-31, I-131 is only radioisotope of iodine used in treatment of thyrotoxicosis. The other isotopes are used only in diagnosis. देखो, थायराइड जब बहुत ज़्यादा हाइपर सिक्रीशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा थायराइड ग्लैंड निकाल रहा है, उस केस में हो जाता है हाइपर थायराइडिज्म। अब हाइपर थायराइडिज्म अगर पेशेंट को हो गया, उसको रोकना कैसे है? हम आयोडीन 131 दे देंगे, थायराइड ग्लैंड आयोडीन 131 को लेगा, सोचेगा कि मैं इससे थायराइड का हार्मोन बना लूँगा, क्योंकि थायराइड का हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। पर ये वाला आयोडीन तो वो आयोडीन है जो थायराइड का ही डिस्ट्रक्शन कर देगा। देन हमारे पास है इंसुलिन। इंसुलिन का रोल डायबिटीज मेलाइटस में है। ये दो तरीके की होती है, टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो होती है और वो टाइप 1, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 2। Insulin is a polypeptide hormone secreted from beta cells of islet of Langerhans. It is formed by proteolysis of proinsulin. अब पेशेंट को इंसुलिन देने के तरीके क्या हैं? एक है कन्वेंशनल प्रिपरेशन, जिसमें रेगुलर इंसुलिन आता है, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन आता है। देन वी हैव न्यूअर प्योरिफाइड इंसुलिन प्रिपरेशन, जिसमें रेगुलर इंसुलिन है, बायोसिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन हैं, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं जैसे सल्फोनाइलूरिया, बाइग्वानाइड, मेग्लिटिनेट, थायोजोलिडिनियंस। अब सल्फोनाइलूरिएज जो है वो नए ग्लूकोजियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को
Then we have biguanides. देन वी हैव मेग्लिटिनाइड बाइगोनाइड के अंदर मेटफॉर्मिन आता है बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये एंड इससे पोस्ट प्रांडियल प्लाज्मा ग्लूकोज भी कम होता है देन वी हैव थाइएजोलिडिनेडियोन्स जिसमें रोजीग्लिटाजोन पायोग्लिटाजोन ये दो ड्रग्स आती हैं एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तो सबसे पहले आएगा ओसीपी combined pills जिसमें it is a combination of estrogen and progestin given together इस पे 21 pills होती है रोज एक पिल लेनी है 21 दिनों तक फिफ्थ डे ऑफ menstrual cycle से शुरू करके then we have phased pill this is combined pill but biphasic or triphasic in nature example estrogen is lower level is kept constant but progesterone is low in early phase and increasing during subsequent phase of menstrual cycle मिनी पिल होती है प्रोजेस्टेर ओनली पिल्स इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है देन पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन जिसे आई पिल के नाम से भी जाना जाता है इसमें दो टैबलेट होती हैं जो 12 घंटे के बाद लेनी होती हैं एंड 0.75 लीवोन और जेस्टेरॉल होता है देन वी हैव सम इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस दे आर यूजुअली गिवन आईएम रूट इसमें हम डंपा होता है इसका शॉर्ट फॉर्म डिपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट 150 mg का इंजेक्शन है 3 महीने में एक बार देना है देन सेंटक्रोमान जो सहेली के नाम से आता है आजकल इसका नाम सरकार ने छाया रख दिया है नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट होता है ये देन गोसिपोल एक मेल एंटागोनिस्ट है जो आज की डेट में इसको चल रहा है then we have anabolic steroids nandrolone stanozolone and mesterolone now we are coming to unit 15 poisoning बच्चों अगर मैं पॉइजनिंग की बात करता हूँ तो सबसे पहले जनरल ट्रीटमेंट पॉइजनिंग के केस में क्या देंगे सपोर्ट वेंटिलेशन देंगे मेंटेन करेंगे कार्डियोवास्कुलर फंक्शन अगर हाइपोथर्मिया है उसको रिवर्स करेंगे कन्वर्जन्स को ट्रीट करेंगे करेक्ट फ्लूइड देंगे एसिड बेस का बैलेंस देंगे प्रिवेंशन ऑफ पॉइजन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मान लीजिए किसी ने अगर पॉइजन कंज्यूम कर लिया है तो सबसे पहला है गैस्ट्रिक लवाज मतलब बेसिकली हम वॉश करते हैं स्टमक के सारे कंटेंट्स को गैस्ट्रिक लवाश may be useful for 6 hours after ingestion of poison. जो गैस्ट्रिक लवाज है इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड अगर कोई कोरोसिव या कॉजेटिव सब्सटेंस है एक्टिवेटेड चारकोल इज प्रोबब्ली मोस्ट इफेक्टिव अदर एमएसएस और लवाज एक्टिवेटेड चारकोल है इससे हम गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं अब एक्सेलरेटिंग पॉइजन एलिमिनेशन इसमें एल्केनाइजेशन ऑफ यूरिन करते हैं देखो पहला अगर मान लीजिए किसी ने पॉइजन कंज्यूम किया पहला स्टेप क्या है उसका तुरंत गैस्ट्रिक लवाश करो उसके पेट के जितने उसके स्टमक में जहर पड़ा है उसे बाहर निकाल दो अब फोर्स्ड एल्कलाइजेशन करते हैं ताकि वो जितना अगर एब्जॉर्ब भी हुआ है तो वो तुरंत यूरिन से निकल जाए एंड फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल is effective in the following. This is substances
which used which from masses like aspirin, iron, lithium, substances which remain in the stomach for a long time जैसे बारबिटल एस्पिरिन है। हमें ये पता होना चाहिए सब्सटेंस जो लंबे समय तक रहते हैं अगर लार्ज अमाउंट में हो, या सब्सटेंस जिनका कोई एक एक्टिव मेटाबोलाइट है। कॉमन टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग। अब हम बात करेंगे एंटीडोट की। Atropine is specific antidote and is highly effective in counteracting the muscarinic symptoms. Then the cholinesterase reactivators, they are used in restore neuromuscular transmission. Chronic alcoholism के केस में the treatment is initiated in single dose which is gradually reduced when is about alcohol, ethyl alcohol or ethanol percent blood hyperuricemia. ट्रीटमेंट ऑफ मिथेनॉल पॉइजनिंग। अगर मैं मिथेनॉल पॉइजनिंग की बात करता हूँ, पहला क्या है, गैस्ट्रिक लवाश, एक्टिवेटेड चारकोल, एंड देन वी हैव IV oral ethyl alcohol, maintenance of nutrition, administration of folinic acid together with folic acid to accelerate metabolic degradation. Then we have antidotes. This one mechanical antidote, chemical antidote, systemic antidotes, universal antidote. अब मैकेनिकल एंटीडोट क्या है? दी सब्सटेंस इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन। ये पॉइजन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते जाके। दिस इज मैकेनिकल एंटीडोट। केमिकल एंटीडोट क्या है? दे रिएक्ट विद पॉइजन टू फॉर्म हार्मलेस इनसॉल्यूबल फॉर्म। सिस्टमिक एंटीडोट क्या है? दे प्रोड्यूस द एक्शन विच आर ऑपोजिट टू दैट ऑफ पॉइजन, जैसे कैफीन, फॉर्मोर्फिन, एट्रोपिन एंड पाइलोकार्पिन। डाइसल्फायरम एक नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसे हम क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में यूज करते हैं। ल्यूकोफोरिन है, प्रालिडॉक्सिम। प्रालिडॉक्सिम एंटीडोट है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का। निकोटीन, देन ब्यूप्रोपियोन। एंटी स्नेक वेनम। Antivenom is the only specific dose for snake venom. Antivenom is immunoglobulin purified from serum or plasma of horse or sheep that has been immunized with venom of one or more species of snake. Antivenom should be given to by the intravenous route. Adrenaline should always be drawn up in the readiness before antivenom is given. कॉमन पॉइजनिंग और उनके एंटीडोट्स की लिस्ट है ये, जैसे आर्सेनिक, डाइमरकेप्रोल, साइनाइड, 100% ऑक्सीजन, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथेनॉल, ओपियोइड्स, नैलोक्सोन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, एट्रोपिन, आयरन, desferrixone. And this is a long list of all the antidotes of poisoning. Now coming to unit 16, drug interaction. अगर मैं drug interaction की बात करता हूँ, so drug interaction may be defined as alteration in duration or onset of action, pharmacokinetic and pharmacodynamic. क्या है pharmacokinetic? Which occur at level of absorption, distribution, metabolism and excretion of one drug. Pharmacodynamics which occur at the site of drug action. फार्मेकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूँ,
इंट्रैक्शन ड्यू टू फॉर्म ऑफ चीलेट कॉम्प्लेक्स जैसे एंटासिड है, ये अगर टेट्रासाइक्लिन के साथ आइसोनियाजाइड इन ड्रग्स के साथ लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। एंटासिड का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है इस ड्रग के साथ। कोलेस्टायरामीन, दिस इज लिस्ट वेयर द ड्रग्स आर इंटरेक्टिंग इन अदर फॉर्म। अब ड्रग का इंटरेक्शन अगर पीएच बढ़ गया, तो अगर पीएच चेंज होता है तो जैसे एंटासिड सिमेटिडिन डिक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन को, एंड सिमेटिडिन टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। गैस्ट्रिक मोबिलिटी की वजह से कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन चेंज होता है। इंट्रैक्शन ड्यू टू डिक्रीज इन गैस्ट्रिक मोटिलिटी, देन interaction due to alteration of gut. Now, drug interaction involving distribution. After absorption into blood, many drugs are bound to plasma protein, and coumarin is displaced by diazoxide and these drugs. Now, so this is the whole list of drugs. These are the drugs that induce the metabolism. These are the drugs that inhibit the metabolism. Drugs interaction during excretion. अब बात करते हैं फार्माडायनामिक की। इट हैपेंस एट द साइट ऑफ ड्रग एक्शन व्हेन टू और मोर ड्रग्स विद सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। इसमें हमारे पास है एंटागोनिज्म का मतलब क्या है, जब दो ड्रग्स एक दूसरे के अगेंस्ट काम करें। सिनर्जिज्म का मतलब क्या है, जब दो ड्रग्स एक दूसरे के साथ काम करें, जैसे कि दिस इज अ लिस्ट ऑफ ड्रग्स, एंड जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं so this is the list. You have to just go through the list. Now I'm coming to unit 17, where I'll be talking about the miscellaneous drugs. Number one in miscellaneous drug is antiseptic and disinfectant. एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या है? अगर मैं अपने हाथों को क्लीन कर रहा हूँ, किसी लिविंग सरफेस को क्लीन कर रहा हूँ, एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट क्या है? जब मैं नॉन लिविंग एरिया को साफ कर रहा हूँ, जैसे कि फिनॉल, डिटॉल, ये सारे ड्रग्स, KMNO4, पोटाशियम परमैंगनेट जिसे बोलते हैं। एज एंटीसेप्टिक गार्गल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेंजाइल परऑक्साइड। कुछ हैलोजेंस हैं जैसे क्लोरीन, अगर आपने सुना हो तो पानी को डिसइंफेक्ट करने के काम आता है क्लोरीन। देन आयोडीन, पोविडिन आयोडीन, और जिसे हम बीटाडाइन के नाम से जानते हैं। माउथ वॉश आता है, ऑइंटमेंट आता है, सॉल्यूशंस आते हैं। क्लोरीनेटेड लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, and then we have biguanides like chlorhexidine, quaternary ammonium antiseptics जिसमें आ जाता है cetrimide, and then we have similar to cetrimide cetyl pyridinium, then boric acid, एंड कुछ मरकरी के कंपाउंड्स हैं, कुछ अमोनिएटेड मरकरी होता है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फर डाइजीन, बर्न्स के पेशेंट में काम होता है, जिंक सल्फेट। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है कुछ डाइज हैं, जेंशियल वॉयलेट बहुत कॉमनली यूज होती है, अल्कोहल्स हैं, सोप है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, विटामिन की अगर मैं बात करता हूँ तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, कंजक्टाइवल जीरोसिस, ग्रोथ रिटार्डेशन, रफ स्किन। विटामिन डी रिकेट्स करता है, विटामिन ई एक्सोनल डीजनरेशन करता है, विटामिन के डिक्रीज प्रोथ्रोमिन कंटेंट ऑफ ब्लड करता है। विटामिन B1 क्या करता है? बेरी बेरी करता है। B2 एंगुलर स्टोमेटाइटिस, पेलेग्रा,
ये सारी बीमारियां होती हैं विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से। अगर मैं विटामिन ए की बात करूं तो बहुत सारे प्लांट और एनिमल फूड्स के अंदर ये होता है। द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे स्पिनच है। द डार्कर द ग्रीन लीव्स द हायर द कैरोटीन प्रेजेंट। विटामिन ए एक ग्रीन और येलो वेजिटेबल जैसे पंपकिन, पपाया, मैंगो में भी होता है। The most common important carotenoid is beta carotene, which is highest vitamin A percentage. Fish liver oil is the richest source of vitamin A. फिर हमारे पास आ जाता है विटामिन डी। ये वाला जो विटामिन है ये हमें धूप से हमें मिलता है। इसकी बहुत सारी रेंज है। विटामिन D2, कोलिकैल्सिफेरॉल, विटामिन D3। देन वी हैव विटामिन ई, ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। देन वी हैव विटामिन बी, like thiamine, riboflavin, niacin। नियासिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है। एंड विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबालामीन, पॉलिक एसिड, विटामिन सी, कैल्शियम। कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो इंपॉर्टेंट है, लाइक वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस, लाइक निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, selenium. So these are the important vitamins and minerals in our body. So we are done with our unit 17. If anyone is having any doubt, you may ask. अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। No doubt, sir.